بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ سید مبشر رضا حاضر ہوں۔ آج جس عنوان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ عنوان ہے کہ قادیانی مرزئی جو کہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں کس طریقے سے دنیا کے اندر کام کرتے ہیں، تبلیغ کس طریقے سے کرتے ہیں، ان کی تبلیغ کا انداز کیا ہے۔ اور آج ہم آپ کو آپ بیتی سنائیں گے ایک شخص کی جس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا اور اس نے ہم سے رابطہ کیا واٹس ایپ کے اوپر، اور اس نے اپنی آپ بیتی سنائی ہے، وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ اس سے قبل کہ میں آپ کو واٹس ایپ کے اوپر لیے چلوں اور جو ہمارے دوست نے اپنا پیغام ریکارڈ کروایا ہے، ہم تک یہ پیغام بھیجا ہے، وہ میں سناؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانی اور مرزئی جو کہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم ان کو قادیانی اور مرزئی کہتے ہیں، اور ان کا جو کلٹ ہے، ان کا جو گروہ ہے، اس کا نام ہے جماعت احمدیہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں خدا کا رسول ہوں، نبی ہوں، اور کبھی یہ بھی کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا کہ میں خود خدا ہوں، تو بہت لاتعداد قسم کے دعویٰ جات ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور بلکہ یہ کہتے ہیں جی حقیقی اسلام، ہمارا تعلق حقیقی اسلام سے ہے، ہم حقیقی اسلام والے ہیں، جماعت احمدیہ حقیقی اسلام نعرہ یہ لگاتے ہیں۔ یہ لوگ چھپ کے کام کرتے ہیں، ظاہر نہیں آتے۔ سوشل میڈیا کے اوپر عمومی طور پہ آپ کو جو پیجز نظر آتے ہیں، جو بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ملحدین کے پیج ہیں، دہریہ لوگوں کے پیج ہیں جو کسی خدا اور رسول کو نہیں مانتے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیج جو ہے نا عیسائیوں کا یار، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیج جو ہے یہ مسلمانوں کا ہے، اور کبھی اس کا تعلق ہم جوڑ دیتے ہیں کبھی کسی فرقے کے ساتھ، یہ پیج سنیوں کا ہے، یہ پیج دیوبندیوں کا ہے، یہ پیج جو ہے یہ اہل حدیث وہابی لوگوں کا ہے، یہ پیج شیعہ لوگوں کا ہے۔ لیکن پیچھے پردہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے پیجز، چونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہم نظر رکھتے ہیں، الحمدللہ گہری نظر، اور بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ہمارا اس معاملے کے اندر، عرصہ 10 سال سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم عقیدہ ختم نبوت کے محاذ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے اندر کے معاملات اور بریکیاں جو ہے نا وہ ہم سے کوئی پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو بڑے پیجز کو ہم جانتے ہیں، وہ اصل میں ہوتے قادیانیوں کے مرزئیوں کے ہیں، لیکن لبادہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے کچھ اور اوڑا ہوتا ہے۔ یہاں ایک میں بات یہ بتاؤں گا، انتہائی توجہ طلب ہے، کہ میں نے ایک پہلے بھی لیکچر دیا اور وہ بھی ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو گئے، ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، اس میں بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ قادیانی مرزئی کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو اب یہ والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ایک دوست ہم سے رابطہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے، وہ کیا ہوئے وہ تو آپ خود ان سے ہی سنیے گا، ان کی زبان سے ہی سنیے گا۔ میں تھوڑی سی یہاں گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو سن کر کئی کمنٹ اس قسم کے آئیں گے، یار یہ ان کا اپنا ہی بندہ ہے، ایسے ہوتا ہے، کئی کمنٹ آئیں گے، مرزئی بھی آ کے کہیں گے او یہ تمہارا تو اپنا ہی بندہ ہے تو ہمارا اپنا ہی بندہ مسلمان ہے، جس کی ابھی ہم گفتگو سنائیں گے، ہمارا بندہ ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا یہ بالکل حقیقی یہ معاملہ ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ ہم تک یہ پیغام آیا اور یہ پیغام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس قسم کے پیغامات ہمیں آتے ہی رہتے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں، یہ ویڈیو تو ہم پہلی دفعہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، اس قسم کے پیغامات ہمیں ملتے ہی رہتے ہیں، ایک سٹوری نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس قسم کی سٹوریز، کہانیاں
ये किस्से बिखरे पड़े हैं। ये एक कहानी नहीं है, ये समझ लें घर घर की कहानी है। कई ऐसे लोग हैं जो कादियानियत के डसे हुए हैं, मरज़इयत के डसे हुए हैं। तो आइए जी सुन लें आप गुफ्तगू, हमारे दोस्त क्या कहते हैं। मोहतरम दोस्तों, ये व्हाट्सएप के ऊपर हम मौजूद हैं और एक हमारे दोस्त ने ये ऑडियो सेंड की है। ये एक पैगाम है, बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। और इनका नाम और इनका पता वगैरह हम छुपा रहे हैं। बहरहाल ये जेन्युइन है, असली इनकी ऑडियो है और इनकी आप बीती है। इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। और मुबशर भाई, एक और बात थी मैं आपसे करना चाह रहा था। कुछ इस हवाले से भी कोई वीडियो आप बनाएं या कोई गुफ्तगू कीजिए आके यूट्यूब पे। आपके माशाल्लाह काफ़ी फॉलोअर्स हैं जो सुनेंगे। जितने लोगों का भला हो सकता है वो ज़्यादा बेहतरी होगी। तो खैर, अल्लाह पाक ने शायद मुझे ही ज़रिया बनाया है इस चीज़ का कि मैं ये चीज़ आपके सामने रखूँ, ताकि लोगों को पता लगे कि क्या क्या हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि वो एक कादियानी लड़की है, तो उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ है। खैर, जिस तरह का भी था, तो कुछ अर्से पहले की बात है। तो उसने मुझे ये कहा कि जी मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, तो घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा रिश्ता कर देना है हमने, तो तुम अपने घर वालों से कहो कि मेरा रिश्ता मांग लें, मतलब मेरे घर वालों से बात करें शादी की। तो मैंने इसको यही कहा, मैंने कहा कि जी मेरे घर वाले तो मुझे जान से मार देंगे अगर मैंने गलती से भी ये बात की। और वैसे भी ना तुम्हारे मज़हब के अंदर कोई ऐसा गुंजाइश मौजूद है कि तुम शादी कर सको किसी गैर अहमदी से, और ना मैं करना चाहता हूँ, जो ईमानदारी की बात है। तो उसने मुझे कहा कि सिर्फ एक तरीका है, लाइक वो थोड़ा सा, मतलब उसका कहने का मकसद था कि वो मुझे कुछ अपनी तरफ लेके आना चाहती थी। तो वो बात उसने इस तरीके से की कि जी मेरी एक दोस्त थी, वो भी मतलब कि कादियानी अहमदी थी, तो उसको भी किसी गैर अहमदी लड़के से मोहब्बत थी, प्यार था, इश्क था, जो भी। तो उसने, तो लड़के ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंड ले लिया था, वो तो उसकी मोहब्बत में बड़ा पागल था। मैंने कहा वो किस तरह जी? तो उसने कहा कि उसने उसको सिर्फ ना एक पेपर दिया था। अब ये आप बेहतर समझते हैं, पता नहीं ये कौन सा पेपर है। खैर, उसने कहा कि उस लड़के ने बस उस पर साइन कर दिए थे और उन दोनों ने जाके जो है जनाब शादी कर ली थी। तो वो पेपर, खैर मैंने उसे काफ़ी जब पूछा तो उसने यही लिखा, उसने कहा था कि वो सिर्फ एक दस्तावेजाती तौर पे आप ये कबूल करते हो कि आप अहमदी हो, दिल से आप बेशक हो ना हो। खैर, उसकी ये बात सुन के तो मेरी उससे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, तो मैंने अब उससे ख़त्म कर दी बिल्कुल बातचीत ना। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की? मैं तो कुत्ते पे लानत भेजता हूँ उस पर, मिर्ज़ा पे। मैं तो सोच नहीं सकता कभी ख्याल में भी उसको कि ये कोई, उसको तो मैं मैं साहबा की या ताबी की भी अहमियत नहीं देता। अगर झूठे मुंह पे मुझे कहना पड़े तो मैंने कहा तुम तो नबी की बात कर रही हो, तो मैं कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो कुछ इस तरह का भी एक पैगाम आपकी तरफ से, अगर जितने भी हमें मुसलमान भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं हम, आपकी तरफ से अगर कोई पैगाम हो कि आप कुछ इस तरह का बताएं लोगों को, क्योंकि मैं तो अब वीडियो अपलोड करता, ज़ाहिर है मेरा ये काम नहीं है, जो ईमानदारी की बात है। ये आप एक नेक काम पे चले हुए हैं, आप लोगों की आंखें खोल रहे हैं। तो जिधर इतना कुछ आपने बताया लोगों को, इधर एक वीडियो ये भी आप थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर बनाइएगा, चाहे 2 मिनट की या 5 मिनट की बनाएं, जिसमें आप ये बताएं कि ये लोग अपनी लड़कियों को भी इस्तेमाल करते हैं हम मुसलमानों को राह से हटाने के लिए। अब ये तो आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि आपका क्या तरीक़ाकार होगा, लेकिन अगर मैं आपको एक भाई करके अगर बताऊं, तो इन कादियानी लड़कियों को, या जो अहमदी लड़कियां हैं, इनको अपना जिस्म पेश करते हुए किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती। तो ये मैं आपका भाई हूँ छोटा, तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे कि ये लोग अगर इनको अपना जिस्म देकर भी किसी को अपनी तरफ करना पड़े तो ये करती हैं। जिस्म के अलावा माली खर्च भी अगर इनको करना पड़े तो ये करती हैं। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरी पिछले दिनों में 5 फरवरी को मेरी सालगिरह थी। उसका मुझे फ़ोन आया था कि जी तुम्हारी सालगिरह है तो तुम लाहौर आओ, हम दोनों इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे, किसी होटल में कमरा ले लेंगे तो पूरी रात उधर ही रहेंगे, ये वो कुछ इस तरह। तो मैंने कहा लाहौर तो मुश्किल है, क्योंकि वालिद और वालदा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है अक्सर, इस वजह से। तो उसने मुझे मुबशर भाई फिर ये कहा कि मैं तुम्हें ना 10-15 हज़ार रुपया भेज देती हूँ, तुम अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ें ले लो। बात करने का मकसद ये है, अल्लाह का शुक्र है मेरी आदत नहीं इस तरह की, बल्कि कोई भी जो अच्छा मुसलमान है उसकी ऐसी आदत नहीं है कि वो किसी औरत से पैसे लेके खाए, ज़मीर गवारा नहीं करता पहले तो बात।
तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये लोग इन लोगों को अगर पैसे खर्च के भी खुद की तरफ से किसी पे पैसे खर्च के इन्वेस्ट करते हैं ये, ताकि कल को हमारी तरफ आ जाएगा। अब अल्लाह आलम क्या है ये चीज़ें क्या नहीं है, खैर। लेकिन जो दो बातें मैंने की कि ये माली तौर पे भी आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आ, और ये अपनी लड़कियों के ज़रिए भी आपको अपनी तरफ बुलाते हैं, जो मैंने महसूस किया, आप तो बेहतर जानते हैं। और ये जिस्मानी अपना जिस्म पेश करके भी आपको अपनी तरफ खींचती हैं। तो कुछ इस तरह का माजरा हुआ था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे ख़त्म कर दी बिल्कुल। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप इस चीज़ के बारे में कुछ वीडियो बनाकर 2-3 मिनट की लोगों को समझाएं, क्योंकि जिस तरह मैं बेवकूफ़ था, ज़ाहिर है जज्बाती हो जाते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा। 2 दिन की हंसी मजाक को या 2 दिन की अच्छी बात को थोड़ा सा जो मैसेजेस पे गपशप हो जाती है तो उसको प्यार समझ लेते हैं। और अगर एक लड़की अपना जिस्म पेश कर दे तो बस पागल ही हो जाते हैं कि जी इसने तो हमें अपना सारा कुछ दे दिया, तो हम अपने घर वालों से लड़ पड़ेंगे इसके पीछे। तो कुछ इस तरह का माजरा था। कहीं ना कहीं मेरा भी ज़हन इस तरह का एक दफ़ा बन चुका था कि मुझे अपने घर वालों से भी लड़ना पड़ा, कि मैं लड़ूंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी आंखें खुल गई हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके थ्रू ये पैगाम बाकी लोगों को भी मिले। और जो अगर एक और गुजारिश है, जब आप अपना ये पैगाम लोगों को देंगे कुछ इस तरह का, जो भी आपने वीडियो बनानी है, उसमें मेरा नाम ना इस्तेमाल कीजिएगा, बस ये आपसे गुजारिश थी। बाकी लेकिन ये ज़रूर एक वीडियो बनाइए ताकि मुसलमान जितने भी भाई हैं हमारे वो इन लोगों से बच सके जितना हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, आपने सुन लिया। ये थे व्हाट्सएप के ऊपर हमारे एक दोस्त, इनका नाम भी हमने छुपाया है और इनका फ़ोन नंबर ये वो सब सिक्योरिटी की बिना पर हमने मख्फी रखा है। और इस किस्म के मामला कसीर मिलते हैं हमें सोशल मीडिया के ऊपर। आपसे गुजारिश की जाती है अपने ऊपर नज़र रखें, अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंटरनेट पर मौजूद होते हैं। कहीं वो ऐसे पेज के अंदर तो नहीं घुस गए कि जिसके अंदर जनाब कादियानी उसको हैंडल कर रहे, वो तलीमात कादियानी फराहम कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है। अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अल अमान वल हफीज़, फितनों का दौर है, फितनों के दौर से हम गुजर रहे हैं। यहाँ हम अपना पैगाम भी देंगे। इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत की तहरीक, ख़त्म नबूवत फोरम इस मरतबा इंशाअल्लाह तआला भरपूर तरीके से मुहिम चला रहा है ज़कात की, फितरे की। और आपसे गुजारिश की जाती है कि आप अपनी जो ज़कात है या फितरात हैं या जितने सदक़ात हैं, सदक़ात वाजिबा हैं, नाफिला हैं, वो आप ख़त्म नबूवत फोरम को नवाजें। ख़त्म नबूवत फोरम अनकरीब इंशाअल्लाह तआला एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर आलमी एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा इदारा, एक इल्मी मदरसा बनाने का इरादा रखते हैं जो कि तकाबले दयान के ऊपर होगा। तकाबले दयान अमूमी तौर पे हमारे दोस्तों को पता नहीं कि ये है क्या, क्या होता है। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि जिसके अंदर मुनाजिर तैयार होंगे, डिबेट करने वाले, मुतकल्लिमीन, कलाम करने वाले। अब देखें, यहाँ आसान कर देता हूँ और अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि ईसाई इतराज़ करते हैं, यहूदी इतराज़ करते हैं, मुल्हिदीन इतराज़ करते हैं इस्लाम के ऊपर, कुरान और हदीस के हवाले देकर। अब उनके जवाब देने के लिए कौन है वो, जब जवाब देने के लिए हम ढूंढते हैं तो बंदा को नहीं मिलता। तो ये इतराज़ात एक बंदा तो नहीं कर रहा, हज़ारों और लाखों की तादाद में ये लोग कर रहे हैं इतराज़ात। और इनके जवाब देने के लिए मुतकल्लिमीन की ज़रूरत है जो कि इन लोगों की किताबों के ऊपर माहिर हों। वो ऐसे उलमा की जरूरत है जिन्होंने इनकी किताबें भी पढ़ी हो और अपनी भी पढ़ी हो, अपने अकीदे का भी पता हो, तो वो कुरान और हदीस से उसका जवाब दे सके। ये आसान लफ्ज़ों में मैंने ये बात समझाई है, अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। तो इस किस्म के उलमा की जरूरत है, इस किस्म के उलमा की जरूरत है, मुतकल्लिमीन की जरूरत है। तकरीरें करने वाले लोग इधर नहीं चल सकते जब तक के वो माहिर ना हो इस फन के अंदर। वो है ना कि लिकुल्ली फन्निन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं जो इस फन को बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल इस किस्म का इदारा हमने एक बनाना है इंशाल्लाह, और बड़े पैमाने पर इसका काम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश की जाती है अपने तमाम सदकात हमें नवाजे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।